Hello, viewers. Welcome to Beyond the Game with Sim. Before we begin this episode, let me just talk about how so many Indians watch football, but very few have an interest or knowledge towards the sports in their own country. So we decided to discover more about the Indian football scene from a very well-known name in the industry and a seasoned expert, Mr. Bimal Saifullah Ghosh. He's the only second Indian football coach to receive India's most prestigious sports award for coaches, the Dronacharya Award. He brings his vast experience from his playing days to coaching the top clubs in India. In this episode, we will discuss about his early playing days, his introduction to coaching, the journey towards receiving Dronacharya Award, the scope of Indian football, and the qualities a coach looks for in a player. Oh, but that's not it. Before you move ahead, don't forget to subscribe to our channel for more such videos. Enjoy the video ahead. I am Simran, your host. I am back with another episode with a very special guest. We have the ex-national player of India and a very experienced coach, also the only second person to win the Dronacharya Award. So we have Mr. Bimal Prafulla Ghosh. Thank you very much. Thank you, sir, for coming to this podcast. So we start from the beginning. How did you get into football? I got three games choice: football, hockey, and cricket. But in my town, I was staying in very small town is Kamti, Nagpur. Okay. Kamti is actually cantonment area, that is army area, and there when football going on, and my daddy Prafulla Ghosh was an employee of that Major Prafulla Ghosh, employee of that APS Center, Army Postal Service, Kamti. So they got very good team. So I was very small and very young when I watched the team. And they were a fantastic team and number one team of Nagpur. Then I was selected. I'll play only football, though I was very good in hockey and cricket also. So you chose football. Yes. Okay. And how was your family towards sports? My family, my brother, Shamal Ghosh, is a very good coach of Nagpur right now. He was a very good player. And one more brother, eldest one, Kamal Ghosh. He was also a good player, but he left because of the employment and all. And my one sister was there, Kavita Ghosh. She was also very good in dance and this songs and all. And but I selected only football, and my brother used to play Shamal Ghosh. He is elder to me. And my daddy, Prafulla Ghosh, he never allowed us to play football first. And but after some time he has allowed, because immediately we grown up and we have got a lot of name in Nagpur. The twins brother, they are doing magic in football. And in that way, Shamal Ghosh and Bimal Ghosh, we both produced. And he got immediate job in first in railways, then in Western Coalfield, Nagpur. They also want me to join, but I was younger one. I never wanted to join. Then my daddy wants me to go for army, and second lieutenant he has tried for me, but I was not interested. I came to Bombay and I was called by Orke Mills, one of the best team of Bombay that time. They were league champion, and they beat even Mohun Bagan 4-0 in the Rose Cup. Wow. They were one of the Best club team. In that, Bernard Pereira, Arthur Pereira, they were stalwart. They played for Indian team and all that. Okay. And how did your journey become? Like, you started off in Nagpur and you went on to play for the national team. So how was that journey? Actually, in Nagpur, I got one experience also. Bad experience though. I was in one team and I was playing, and I don't know, I was not playing well maybe. And one coach has removed me from the ground after. I was very much angry. And I left the team. And after 6 months, we played against that team. We have made one more team like Vijay Sporting. And we beat that team 8-0. And I scored 4 goals in that match. And I'm very I don't want to lose at any time. It helped me a lot, and I learned a lot of things when I was a player. That time when I was in Orchid, I scored a hat-trick. And in the second match, I was out of the team.
So I was asking coach why it is like that. He has told me I have to give chance to senior players also. Then I decided in myself that I will player who will play well will get chance. Whether he played for India or whether he has not played for India, he will get chance. Merit is the main thing. Yeah. So I adopted that one in coaching. So you started off playing for the club, right? After that, how did you get selected for the national team? Was it playing through this club, or was it by performing to the... Actually, I first played for one college. I want to mention because Seth Kesrimal Porwal College. And when somebody was captain, that time team was very strong, but we lost in the final. Okay. Lot of problem because we lost. Disheartened. Yeah. The second time, when in the final year, I was a captain of the team. And our team was very weak. But I wanted to win that match at any cost. And we have won the set tournament and I played for Nagpur University. Then I represented Indian University, Combined University. Then I came to Bombay and joined Orke. They offered me. And that time East Bengal also called me. Then I selected Orke means because they were number one team of Bombay. Yeah. So then I played 2 years for them. Then I got called from Air India. I was not knowing which team is there. This is Army team or this is what team. But I played. But as a player, I was not very much satisfied to play in Air India. But when I got chance to become a manager and coach, I fulfilled my all the dreams. Okay. And since we were talking about the playing career, and then you switched to coaching journey as well. So your family's been supportive for sure. Yes, yes. We used to give coffee and tea early in the morning, 4:30. My mom, Parun Ghosh, and my brother, Chamal Ghosh, we all were sportsmen like that. Yeah. Full family like that. And we were very popular over there. We were staying in Cantonment area, that is Army area. Yeah. So we were very much popular. We used to practice hard, like 4-5 hours in the morning, then also in the evening. And we used to break all the tricks of the Ramnath Lohia High School. Though it is not good, but that one is there, that madness is there to become a player. And how were you introduced to coaching? Was it exactly after you retired from football, or was it like after a little pause? Actually, I got just both the injured. My both the once one player has his knee, then after 9 years, again one player. And both the knee has got problem. That I met Dr. Ali Rani and Anand Joshi also. But they have told me that Bimal, you don't play. You cannot play now. It's so difficult to make. Then I told our management, there was Mr. V.K. Verma was there. He was controller of sports in Air India. Was president of Badminton Association of India. Okay. So he wanted me to take over the team. And he insisted me, Bimal, you take over. You can do wonders. And I told, I don't want this team. I will go and work there because I am good in other things. Then, but they forced me and I become a coach, then manager come coach. Then I told that this team, they are practicing in the morning, that they have to go for office. This is totally wrong. I cannot make them professional. We cannot win the match. You have to give them full-time release. Okay. Then I started that and I told the 5 players to be recruited right now. And luck by chance, our team became a number 1 team of Bombay that particular year only. And I changed certain plannings and all. And I was very strict from this one. That was regarding that. football. Discipline, because I was an army officer's son. So I was very disciplined. I used to get up 1 hour before, 1.5 hours before I go for practice. So that is my habit. That is not for everybody, but everybody should learn one thing. Discipline is must in life. If you want to achieve your goal, if no discipline, then you are no. True, I agree. Discipline is necessary as a player
as an individual As a also, player, as a coach, as everything. as individual, because otherwise you will not progress in life. Yeah. If there's no discipline. Discipline towards your goal also is very important. As your journey throughout the coach, so you started a career with Air India as a coach, right? It was luck by chance that you went there as a coach, but from there onwards, how was it? When I was a player, that time I used to see my coach. I don't want to tell, but I'll say. Okay, tell me. They give chance to the players who are good with them. And I'm not like that person. I won't marry. If you played for India team also, if you are not performing well in our crowd, you will be out. You have to come in reserve. I won't give you a chance. You have to perform when you are there in the ground. And that is my principle. That makes lot of players for Indian team. I used to select any player. Everybody is thinking till now that my scouting is very good. Actually, my scouting was not good. My grooming was very good. Because I can groom any player. Because if I know you are very fast, you got speed, then I work accordingly. If I know that you are good free kick taker, you can take good free kick. I will excel you in that particular department. What is good in you, I'll make it very good. And if you suppose your left leg is not working, so I'll make it average. In that way, I groom them. So you enhance their qualities. Yeah. And my luck also. Then in 94, we went to play in Kuala Lumpur, World Airlines, and we became a champion. We beat German in the final. Wow. And that is my greatest moment in life. And once, within a week, we beat Mohun Bagan twice. Wow. This is again during the Rovers Cup. No. It is in Federation Cup in Haldia. Okay. Like that, this one is there. We used to upset a lot of teams. They were not knowing which type of players I groomed the players, then I played to the next year. It's very difficult. If groom player, you can play and you will win the match, anybody can. You will also become a very good. But to groom and then to play with the competitive level is very different. Yeah. We used to beat even Mohun Bagan, Mahindra, JCT, Churchill brother. It's almost all the team. Yeah, the top teams of that. Top team. उसके बाद हम लोग बहुत अच्छा खेले, जो हम लोग मुंबई लीग अनबीटन चैंपियन हो गए. और वो सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, अनबीटन चैंपियन. और मैंने क्या किया, दिमाग से थोड़ा प्लेयर रिक्रूट कर लिया 5 एंड दे वर गुड प्लेयर्स. और टीम को बहुत मोटिवेट करके नेक्स्ट लेवल में लेके गया. उसमें वो एयर इंडिया टीम लास्ट में मोहन बगान से 1-0 हार गई और उसके फाइनल में. और जहाँ पे भी गए, यानी वर्ल्ड सिक्किम में गए, गैंगटॉक में, वहाँ पे भी जो कप था, गोल्ड कप, वो हम लोग जीते. वी बीट मोहन बगान. सो इट वाज लाइक दैट कि एवरीवेयर एयर इंडिया बिकम वेरी बिग टीम. और हम लोग ने सेकंड डिवीजन आई लीग स्टार्ट हुआ, सॉरी फर्स्ट डिवीजन नेशनल लीग स्टार्टेड. उसमें हम लोग नंबर 1 थे और ऑलमोस्ट नंबर 1, ऑलमोस्ट लास्ट मैच होने वाला था. बट वी प्लेड अगेंस्ट महिंद्रास और वो मैच में कुछ गड़बड़ हुआ, प्लेयर लोग कुछ गड़बड़ किए. और क्योंकि मैं तो जिंदगी में कभी फुटबॉल में गड़बड़ नहीं कर सकता लाइफ टाइम, तो हम लोग वो मैच महिंद्रा से हार गए. महिंद्रा क्वालिफाइड और मोहन बगान आउट. तो मोहन बगान बाद में फिर वापस आ गई. तो ऐसा करके वो जर्नी हुआ. पर हमारी टीम का नाम ऑल ओवर इंडिया हो गया. इंडिया मतलब सब जानने लगे कि एयर इंडिया इज द बेस्ट. बड़ा टीम. हाँ, बहुत छोटा था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा मनी वाइज हम लोग बहुत कम पैसा देते थे. ओनली थिंग को मैं यूज करता था प्रॉपरली. जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड में मैंने लिख दिया कि क्रिकेट प्लेइंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. और शायद बॉम्बे में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती ऐसा लिखने की. मैंने क्रिकेट और हॉकी बंद करा दिया. और मैंने बोला खाली फुटबॉल, अगर तुमको प्रोफेशनल बनना है तो हमको फुल टाइम ग्राइंड. तो फिर मैनेजमेंट वो भी मान गया, क्योंकि मेरी बात मानने लगा, क्योंकि सब जगह जाके हमारा बहुत नाम. और रिक्रूटमेंट जितना भी होता था तो विमल घोष उसमें नंबर 1 रहता था.
कि कोई भी जो भी CMD रहता था या मिनिस्टर रहता था उससे मिल के मैं वैकेंसी अरेंज करवा, हाँ। तो उससे क्या हो जाता, खाली फुटबॉल को नहीं सब गेम्स को फायदा होता, क्योंकि खाली फुटबॉल के लिए तो मैं रिक्रूटमेंट नहीं करा सकता, अदर गेम्स भी बहुत नेसेसरी strong है, थे। हाँ। तो फिर करके ऐसा हम लोग का टीम एक बहुत बड़ा टीम बन गया और हमको बहुत प्रॉब्लम भी होने लगा, क्योंकि हम जैसे हम परफॉर्म बहुत अच्छा करते हमको प्रमोशन भी मिलने लगा, और प्रमोशन मिलेगा तो सबको तकलीफ होना चालू हो जाता कुछ कर नहीं सकते। और यूनियन भी था, वो लोग को चाहते थे कि हमारे जो एम्प्लॉयज के बच्चे हैं वो रिक्रूट हो, पर वो अप टू द मार्क नहीं होंगे तो हम नहीं ले सकते। हमारा प्रॉब्लम इधर ही स्टार्ट होता, अगर प्लेयर अच्छे हैं तो हम तुमको सलूट करके ले लेंगे, पर अच्छे नहीं है तो तुम हमारे थ्रू घुसा नहीं सकते। हाँ। तो मैंने बहुत ऐसा काम किया बीच में। एक बार उन लोगों ने ग्राउंड एलोकेट कर दिए CMD के लिए, फंक्शन के लिए। हाँ। तो मैंने बोला ये ग्राउंड तुमने एलोकेट, ये अभी ये प्लेयर का एंकल ट्विस्ट हो जाएगा, नहीं तो नी इंजुरी हो जाएगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो लोग बोले विमल ये तो तुम संभालो। मैं बोला ऐसा नहीं होगा। तो मैंने वो फंक्शन मैंने रुका दिया। तो CMD आया, CMD सीधा ऐसा घुस के ग्राउंड में आया फंक्शन, वो लोग ने रोड पे कर दिया वो फंक्शन, और आया और फिर मेरे पे सब गले लग गया, यू आर द राइट पर्सन स्पोर्ट्स में, तुम्हारे जैसे आदमी रहेंगे तो कुछ होगा। तो मेरे को बहुत अच्छा भी लगा कि मैं सोचा वो क्या बोल रहा है नहीं मालूम। तो ऐसा करके अपना लाइफ में बहुत तकलीफ हुआ, पूरी स्टोरी बताऊंगा तो बहुत खतरनाक स्टोरी है। अब बताइए, जरूर बताइए। कि हमारा जैसे अपन बहुत अच्छा भी काम किए था, तो इन लाइफ यू शुड नॉट थिंक कि इट विल कम बैक। आपने जिसका अच्छा किए ना वो आपका अच्छा करेगा कि नहीं मालूम, बट गॉड इज वेरी ग्रेट। उसके सामने से आप उसके सामने दे रहे हैं, दे उसके सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो मर्जी है उसके बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ कि हमारे को एयर इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ लास्ट में, क्योंकि हमको प्रमोशन फटाफट मिलता था और किसी को बर्दाश्त नहीं है। अगर शायद मैं जनरल मैनेजर या हो सकता है कि मैं डायरेक्टर तक भी चले गया, ऐसा था, तो पर किसी को बर्दाश्त नहीं, ये साला किधर जा रही है फुटबॉल वाला। तो वो करके सब ग्रुप करके यूनियन का, क्योंकि उन लोग को कभी ग्राउंड चाहिए, कभी रूम चाहिए, सब उल्टे सुलटे काम के लिए, वो हम नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में जो हमने जिम बनाए सब प्लेयर के लिए, रूम्स बनाए उसको सबको फर्निश के, ग्राउंड बनाए बहुत अच्छा ग्राउंड, तो हमारे अंदर फुटबॉल ही था। ट्रांसपोर्ट हम मैनेज कर लेते थे, कैंटीन से हम पूरा खाना प्लेयर को, ब्रेकफास्ट, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था पर सब कुछ था। हमारे पास फ्लाइट टिकट हमारे हाथ में था, हम आपको यानी आपका आने जाने का सब हम कर सकते थे, कितने भी बार फ्लाइट लेके, जो हमारे पास एडवांटेज था हमने पूरा उसको यूज किया या अच्छे काम के लिए यूटिलाइज किया भी। मैं टीम के परफॉर्मेंस के लिए सब यूज किया, और उसके बाद हमारा नाम भी बहुत हो गया। हमारी टीम नंबर 1 हो गई बॉम्बे में, सब टीम को मारती थी। यानी महेंद्रा के 2 प्लेयर का सैलरी हमारा पूरा टीम का सैलरी से ज्यादा था पर वो हमारे से हार जाती थी, तो उन लोगों को भी शौक हो जाता है ये साला टीम में कुछ दम नहीं है, ये कैसे करके जीतता है। पर हमारा एक था कि हम प्रैक्टिस बहुत करते थे, मेहनत बहुत करते थे, 4 घंटा 5 घंटा, ऐसे 4 आवर्स फर्स्ट 7 आवर्स, 7 बजे चालू किए तो 11 फिर शाम को उनको बोलते थे इंडिविजुअल आओ तुम खुद करो, मैं खाली बैठा रहता था। जो फाइनल चीजें खाली ज्यादा उनको प्रेशर नहीं करके जिम उधर ही रखे थे, वीक में 3 days ऐसा जिम करते, ऐसा करके हमारा भी अच्छा था। मैंने जो नॉर्थ ईस्ट का स्टोरी बोला कि नॉर्थ ईस्ट का प्लेयर लेने में सबसे पहले मेरा ही हाथ है, जिसमें वो सब प्लेयर इंडिया प्लेयर बन गए बाद में जाके। वो प्लेयर नहीं थे पर प्रैक्टिस कर करके सब आपने ग्रूम किया, हमने ग्रूम किया या फुटबॉल ने ग्रूम किया, बट वो सब प्लेयर फिर तोम्बा सिंह, बुंगो सिंह, मनी तोम्बी सिंह, सुभाष सिंह, सब इंडिया बन गए। तो मणिपुर के लिए फिर हम लोग ने इसका लिए सिक्किम का, क्योंकि बैचुंग बुटिया एक ही प्लेयर उधर से इंडिया प्लेयर सही था। उसके बाद हमने निर्मल छेत्री, संजू प्रधान, विकास जैन, ये सब प्लेयर को इंडिया बनाया। विकास जैन को खैर
मुंबई टाइगर्स से बना है। तो ऐसा है कि फिर हमने बॉम्बे से प्लेयर लिए, जैसे जीवन मॉरिस, ये नौशाद मूसा, और ऐसे बॉम्बे के प्लेयर को बहुत ग्रूम करके इनको भी बुलाया। अभी हमारे जितने भी हमारे प्लेयर है, खालिद जबीर, इन लोग सब अच्छे अच्छे टीम में कोच है। हाँ, अब सब कोच है। अब सब कोच बजे हैं। खालिद जबीर हो गया, एक नौशाद मूसा हो गया, एक एंथनी फर्नांडिस मुंबई सिटी एफसी में, एक होगन सिंह है जो मिनरवा में था, चैंपियन करा है। तो एक स्टीवन डायस है स्टीवन डायस, जो हाँ। बॉम्बे, जो जितने भी कोच हमारे प्लेयर थे सब कोचेस बन गए अब। और जो हमको अच्छा भी लगता है। हाँ। विनीत शेट्टी भी है और तपस घोष है, बहुत सारे प्लेयर जो है ऑलमोस्ट सब प्लेयर अच्छे अच्छे कोच बन गए। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड का ही बात है कि हमारे प्लेयर ही कोच बने, बाकी दूसरे के प्लेयर क्यों नहीं बने। कुछ तो भी डिसिप्लिन उन लोग के अंदर मस्त था, और उन लोग ने जो आपने ऑब्वियसली उनको हेल्प किया वो डेवलप करने के लिए। मे बी दे ऑलरेडी वर डिसिप्लिन बट यू ट्राई टू हेल्प देम। नहीं, हम बहुत स्ट्रिक्ट थे, हम कभी किसी में एडजस्टमेंट नहीं करते थे। हम जो एक दिन 2 प्लेयर लेट आए, वो इंडिया प्लेयर थे, नाम तो नहीं बताना चाहता, नो वरी। पर लेट आए, हमने उसको बोले घर जाओ, दूसरे दिन आना प्रैक्टिस। 15 मिनट्स का लेट। हमारे इसमें डिसिप्लिन यानी सबसे बड़ा चीज है, और वो हमने खैर हमारे डैडी से ही ज्यादा सीखे। वो डिसिप्लिन तो किसी न किसी के अंदर से आना पड़ता है, डेफिनेटली। पर वही हमारे को बहुत काम दिया। और अभी तक, क्योंकि आप एक मैनेजमेंट के आदमी हैं, आपको अगर टाइम पे आप नहीं गए तो वो सीएमडी आपके लिए नहीं रुकेगा, तो गो ऑन टाइम। तो हमको ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं हुआ टीम बनाने में, क्योंकि हम पूरा दिन ग्राउंड में ही रहते थे। हम घर में भी बहुत कम जाते थे, और ग्राउंड में बहुत टाइम हमारा जाता था, और हमको अच्छा लगता। अभी तक भी हम ग्राउंड में रहते, 3 hours 4 hours इस ग्राउंड में। राइट। जब यू लेफ्ट एयर इंडिया, फिर उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ एयर इंडिया में। उसके बाद हमने एक मिस्टर खिलाचंद थे, ओके। जो कि इंडिया के 7th रिचेस्ट मैन है। उन्होंने डॉट्सल एक टीम बनाया, और मुंबई टाइगर्स वही टीम। तो उन्होंने हमको एज ए टेक्निकल डायरेक्टर सब चीज के लिए कुछ किया। वो खाली हम पे ही बिलीव करते थे, जबकि हमारे पास इंडियन टीम के कोच के जैसे महेश लोटलीकर, चंद्रकांत नायक, चर्चिल के इन लोग भी थे, और एक मोहम्मद उमर करके यूएई का कैप्टन था वर्ल्ड कप का, तो वो भी हमारे ग्रुप में था। और वो हमारे पे खिलाचंद, हमारे राजन खिलाचंद उनका नाम है, ओके। वो दुबई में रहते हैं। वो हमारे ऊपर बहुत बिलीव करते थे, विमल घोष नंबर 1, वो सब चीज देने को हमको तैयार थे। और 2 साल में उन्होंने जितना पैसा दिया पूरे एयर इंडिया में मैंने जिंदगी में नहीं कमाया। उधर ही मैं बोला गॉड इज ग्रेट, मुझसे बड़ा कोई नहीं। जब भी हमारा जैसे प्रॉब्लम हो रहा, फिर हमको जैसे बेस्ट कोच ऑफ इंडिया मिल गया 97 में। तभी भी हमको वो उसमें भी हिस्ट्री ऐसा है कि वो जो कोच जिसने हमको वो अवार्ड दिया, नईमुद्दीन यानी उसको लाए थे वो दिन, वही फिर 2000 अवार्ड में वही 20 साल के बाद हमारे साथ ही कोच था, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। हाँ। तो वो समय भी उसने ही दिया था जब हमको नेशनल लीग में बेस्ट कोच ऑफ। फिर हम महाराष्ट्र टीम में 3-4 साल कोच थे, और हमने फिर बहुत प्लेयर तैयार करना चालू किया। हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते इंडियन टीम को, क्योंकि हमारा इंडियन टीम में कोच करके प्रियरंजन नासमुंशी ने बुलाया था, पर कुछ तो भी हमारा WFS से प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हमको वो इंडिया टीम नहीं मिला। कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम प्लेयर तैयार करने में थोड़े अच्छे थे, ग्रूम करने। फिर हम प्लेयर ही तैयार करते रहे, और हमने ऑलमोस्ट 32 से 35 इंटरनेशनल प्लेयर तैयार किए, और इसलिए हमको ये द्रोणाचार्य अवार्ड। राइट। सो आपने जब नेशनल प्लेयर्स को तैयार किया, सो उसमें से आपका बेस्ट प्लेयर जो है, आपने किसको कोच किया हो, who do you say was your best player? ऐसा बेस्ट प्लेयर ऐसा नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट पोजीशन में खेलता था। But anyone specific? जैसे स्पेसिफिक एक नहीं, 4-5 नाम बोल दीजिए आप। जैसे खालिद जमील हो गया, एक टोम्बा सिंह हो गया, इनबुंगो सिंह हो गया, एक स्टीवन डायस हो गया। फिर मैं दूसरे टीम में गया, वहाँ शहनाज सिंह हो गया, विकास जहरू हो गया, संजू प्रधान हो गया, निर्मल छेत्री हो गया। ऐसा तो काउंट करोगे तो मुश्किल है। मुश्किल है। मॉरिस है। या फिर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसको टच करके उस समय
हम 2 साल के प्रैक्टिस करके वो या तो बड़े क्लब में जाएंगे या तो इंडिया खेलेंगे, ऐसा गारंटी। हाँ, और वही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट most of them played India, most of them. कि जो प्लेयर है सब Yeah, इंडिया all of these. या बड़े क्लब में खेले। हाँ, हम लोगों के हमने ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर प्लेयर तैयार, wow. वो सबसे बड़ा चीज है। बस प्लेयर आते थे तो इंडिया में दूसरे लोग का नजर रहता था, उसको लेके चले जाते थे। तो वो प्लेयर अननोन रहता था जब आता था, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया प्लेयर लोग के लिए, बहुत अच्छा हो। But plus you brought the Northeast culture also, like getting the players from Northeast. Yes. वो कल्चर आप ही ने स्टार्ट किया है फॉर श्योर। ये द्रोणाचार्य जो मतलब ये अवार्ड जो आपको मिला है, was it because of the players that you have produced कि जो आपने टीम को जिसको ट्रेन किया है तो उसकी कोचिंग के हिसाब से आपको ये अवार्ड मिला था? नहीं, ये असली में द्रोणाचार्य का मतलब ही है कि तैयार करना या या आदमी जैसे अर्जुन जो तैयार हुए थे, हाँ, तो द्रोणाचार्य के कारण। तो हमने जो प्लेयर तैयार किए वो इंडिया के और बड़े क्लब में खेले, हाँ, तो हमारा काम उधर ही पूरा द्रोणाचार्य का हो जाता है। हमारी क्लब जो खेली, हमारी बहुत छोटी सी एक क्लब थी, हमारा यानी 40 से 50 लाख हमारा पूरा टीम का बजट। बाजू वाली टीम वो 5 करोड़ 10 करोड़ में है, और उसके साथ कंपटीशन करना और उसके साथ जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो हम कर देते थे क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसे कराते थे कि प्लेयर लोग का हालत खराब हो जाता था। आर्मी ट्रेनिंग। हमने एक काम करके रखे थे, उनको फुल टाइम रिलीज करा के रखे। हाँ। जो हमारे दिमाग में पहले ही आया कि अगर प्लेयर फुल टाइम रिलीज नहीं हो तो कल प्रैक्टिस में वो नहीं आएगा परसों। हाँ, बिकॉज जॉब मैनेज करना और प्लस बहुत डिफिकल्ट, ट्रेनिंग आवर्स बहुत मुश्किल हो तो जाता ये हमने बंद करने से वो प्लेयर को भी बहुत फायदा हुआ, और इनडायरेक्टली सबसे बोलो तो अपने को खुद फायदा हुआ। हाँ, यू गेट क्वालिटी प्लेयर्स, प्लस फ्रीडम मिल जाता है प्लेयर्स को भी। हाँ, और सब प्लेयर एयर इंडिया के डिमांडेड थे उस समय। हाँ, 1-2 साल में उनका नाम आता था, और वो किधर भी बड़े क्लब में या इंडिया में किधर भी प्रोबेबल में आ जाए। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट। प्राउड मोमेंट, और वही हमारा काम हो गया लास्ट में, क्योंकि इंडियन टीम से 95 में हमको प्रिय रंजन दास मुंशी और मूल जो सेक्रेटरी था उन्होंने बुलाए थे, बट कुछ कारण से हमको नहीं मिला इंडियन टीम, जबकि हमने पूरा टीम बना के आए थे। और हमको उसका बिल्कुल गम नहीं था, क्योंकि हम प्लेयर ही तैयार करते रहते, बस हमको उसमें ही खुश रहते थे। मैंने बाद में हमने लड़की लोग को भी तैयार करना चालू कर दिया तो बहुत लेट हुआ, पर लड़का गुड स्टार्ट। या प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी होता ही है हमारा। ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए, और प्लेयर कैसा है, कोच को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तभी वो कोच कुछ करेगा। कोच अगर उसके लिए करता है, कोच उससे बदले में कुछ नहीं मांगता है, वो उसको दे देता है और छोड़ देता है, और वो ग्रो अप होके भी खाली जमीन। वो हमारा स्टूडेंट था जो हमारे साथ 4 साल था एयर इंडिया में, उसके बाद वो दूसरा टीम में गया, बाद में वो अभी रिनोन कोच में इंडिया में वो नंबर 1 है राइट नाउ। और वही एक कोच है जो प्रो लाइसेंस करके उसको, वो नंबर 1 कोच है जमशेदपुर एफसी का। बाकी जो भी कोचेस है वो सेकंड कोचेस है, तो ये नंबर 1 कोच है। तो उसने जमशेदपुर एफसी को रेलीगेशन से अभी ऊपर ला लिया। इसके पहले वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में भी कोच था, जिसमें उसने बहुत अच्छा किया। और क्या बोलूं, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, और वही उसका सक्सेस का राज है। जब आप स्टार्ट किए फुटबॉल और अब जो फुटबॉल है, क्या डिफरेंस है उस फुटबॉल में गेम वाइज? जब हम प्लेयर थे कि कोच थे? दोनों टाइम। जब हम प्लेयर थे तो फुटबॉल बहुत पॉपुलर था, पर टीवी में इसमें उसमें दिखाया नहीं जाता। अभी फुटबॉल ऑल ओवर वर्ल्ड दिखाते हैं, पर जब मैं कोच था तो हमारा स्टैंडर्ड 94 में 96 था। अभी हमारे इधर कोचेस तो बहुत है, बट स्टैंडर्ड हमारा डाउन हो गया, कि हमारा रैंक अभी 116, 17, 125 तक चले गया। तो हमारे किधर तो भी हमारा कोचिंग जो किए ग्रास रूट लेवल में, जो भी कोच करते हैं, डी लाइसेंस या सी लाइसेंस जो भी कोच करते हैं, सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा वेदर दे वर प्लेयर्स। अगर वो प्लेयर नहीं है तो वो प्लेयर को बहुत अच्छे से एजुकेट ग्रास रूट लेवल में कर नहीं सकते, क्योंकि उनको बॉल मारना, बॉल रोकना, बॉल ट्रैप करना यही नहीं आएगा, बेसिक ही नहीं आएगा।
बेसिक हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। इसलिए मैंने मिस्टर कल्याण चौबे को भी बोला कि जो भी प्लेयर रहता है उसका थोड़ा तो सीवी होना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि वो इंडिया प्लेयर होना या बहुत बड़ा प्लेयर होना, वो कम से कम वो फुटबॉल खेला रहना चाहिए। उसके बाद ही वो ग्रास रूट लेवल में काम करेगा तो वो फुटबॉल सही तरह से। लैपटॉप और इसमें अपन वर्ल्ड कप जीत जाएंगे ब्राजील से और जर्मनी से, पर एक्चुअल फैक्ट जब ग्राउंड में जाएंगे तो तुमको रियल स्टोरी पता हो। Right. It's very difficult. The level of game is completely different. हाँ, तो अपने को कैसा है, अपने को यहाँ पे बहुत बड़ा काम है हमको कि प्लेयर ग्रूम करना है और फिर टीम बनाना है। जो हमारा इंडिया में था कि मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और महिंद्रा से खेलना है जैसी टीम से, तो हमको ग्रूम करके फिर खेलना है। अभी सेम स्टोरी इंडियन टीम का कोचेस का भी है कि उनको प्लेयर को ये ग्रूम करना है। वो प्रिपेयर नहीं है अभी कि बड़ा लेवल का टीम से खेले। हम लोग जापान के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकता अभी, एशियन कंट्री की ही बात कर रहा। इराक के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता है। हम लोग साफ गेम्स ये सब करेंगे तो हम लोग चैंपियन हो जाएंगे, बट अगर बाहर निकलने के लिए अपने को पहले पूरा तैयार होना पड़ेगा। इतना तैयारी सफिशिएंट नहीं होगा, मतलब there has to be more. बहुत पागलपन होना। इनके बुक में भी एक लिखा है, अब हमने वो बुक नहीं पढ़े पर हम तो किसी ने भी बोला कि 2 hours प्रैक्टिस, अगर 2 घंटा में प्रैक्टिस में प्लेयर बन जाते तो फुटबॉल का क्या करना। 5-6 घंटे में भी प्लेयर नहीं बनेंगे, टेक्स टाइम और बहुत हार्ड ट्रेनिंग के बाद वो कुछ हो सकता। तो बुक लिखने वाला भी हम लोग के जैसे ही कोई पागल होगा जिसने लिखा, पर वो स्टोरी एकदम गलत है। उतने कम टाइम में कोई प्लेयर बन ही नहीं सकता। तो उन लोग को ये सब चीज बुक्स का फॉलो नहीं करके फुटबॉल जो ग्राउंड में है प्रैक्टिकल लेवल में वो फॉलो करना चाहिए। It's a slow process. हाँ, Obviously. आप जब ट्रेन करते थे, the kind of youth उस टाइम पे और अब का जो यूथ है, आप अभी यंग प्लेयर्स को भी ट्रेन करते हो फॉर श्योर। सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी इन द यूथ नाउ? हम लोग जब 94 में हमने जब स्टार्ट की टीम लिया एज ए फुल फ्लेज कोच कम मैनेजर, तो हम लोग हर्डल्स कराते थे। तो हर्डल्स बाद में अभी तक कोई टीम अडॉप्ट नहीं किया एक्सेप्ट ISL टीम। फॉरेन कोचेस लोग आके दे आर ट्राइंग हर्डल्स। ओके, तो हम कितना गैप हो गया हमारा, सोचो। ये सब चीज हमने पहले भी प्रियरंजन दास मुंशी को जब ये नेशनल लीग स्टार्ट हुआ था 94 में, यानी जब ये स्टार्टिंग था तब बोले थे बैंगलोर में कि ये जो चीज है कि आप लोग जो फॉरेन प्लेयर्स ला रहे, ये प्लेयर तुम्हारे को एक दिन फुटबॉल तकलीफ में ला देगा। तुमको स्ट्राइकर नहीं रहेगा, स्टॉपर डिफेंडर भी नहीं रहेगा। आज उनका सेम डेट है पर वो बोल के 25-30 साल हो गया। तो इंडिया कैसे स्टैंडर्ड होगा? तुम अगर फॉरेन प्लेयर लाके 2 सामने खिला दोगे एंड दे विल स्कोर द गोल, है ना। अभी सुनील छेत्री अब अच्छा प्लेयर है नो डाउट, पर उसका एज भी हो गया है, पर बहुत गोल मारा है, ठीक है। बट उस लेवल में हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, उसका एज भी हो गया, तो हम लोग दूसरे प्लेयर अगर तैयार नहीं कर सके तो हम लोग वी आर ऑफ नो यूज। और कोचेस अगर प्लेयर ही नहीं तैयार कर सकते तो फिर कुछ होगा ही नहीं। अभी जैसे हम गए थे अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर में गए थे, प्लेयर सिलेक्ट, हमने 3 प्लेयर सिलेक्ट किए, और 1 प्लेयर हो रहे था, ठीक है, 2 प्लेयर हमने सिलेक्ट किए। और 2 प्लेयर हमने जो सिलेक्ट किए वो एक सर्विसेज का था और एक मणिपुर का था। तो एक प्लेयर ने 10 गोल मारा था, दूसरा प्लेयर ने 11 गोल मारा था। अब एक प्लेयर अगर वो स्ट्राइकर नहीं है और वो गोल मारता है तो ये तुम्हारी टीम के लिए या फुटबॉल के लिए एसेट है। तुम उसको ग्रूम करो और वो प्लेयर को लेके जाओ तुम हाईएस्ट लेवल पे, वो प्लेयर तुमको डिफरेंट पोजीशन से गोल निकाल देगा, जो हमने सबको बताया फिर बाद में, पर उन लोग को दिमाग में लाते लाते बहुत टाइम हो जाता। मेरे पास अगर एक स्टॉपर है और उसको गोल मारना आता है और मैं उसको टीम में अच्छे से ग्रूम करूंगा कि बहुत अच्छा डिफेंसिव भी बनाओ, तो तुम्हारे को वो एसेट हो गया, वो जाके कभी भी आगे जाके गोल मार देगा। विंग हाफ है वो गोल मार देगा। तुमको स्ट्राइकर का जरूरत नहीं है, तुम्हारे को डिफरेंट प्लेयर वो गोल मार के तुम्हारी टीम को जिता सकता है। तो तुमको अगर सिलेक्शन कमेटी में अगर तुम प्रॉपर अगर काम नहीं किए और तुम्हारा जो कोच है अगर उसको इतना नॉलेज नहीं है कि ये प्लेयर को ला के, क्योंकि देखो
ये गिफ्टेड रहता है, ये गोल मारना है। एक गोल मार दिया, 2 गोल मार दिया, ये लक बाय चांस। 10 गोल मार रहा, 11 गोल मार रहा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, मैन ऑफ द मैच है, उसको अगर तुम ग्रूम करोगे तो और उसको अगर टीम में रखोगे तो तुम्हारा इंडिया के लिए फायदा होगा। राइट। तो तुम्हारा सोच बहुत अलग होगा। आपका क्या ख्याल है एज पर फॉर द ISL? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? ISL बहुत अच्छा है एक टूर्नामेंट के लिए, पर उसमें सब फॉरेन प्लेयर्स ज्यादा करते हैं, उन लोग ही खेल के रिजल्ट लाते हैं। हम बोलते हैं कि एक इंडिया टीम ऐसा बनाओ जिसमें इंडियन प्लेयर रहे और इंडियन टॉप प्लेयर रहे, और वो इंडिया के एक टॉप कोच को दे दो, उसको बोलो उसके साथ कंपटीशन करे, और उसको फिर आप इंडिया रिप्रेजेंट करने बोलो। उनको आप स्पॉन्सर, कोई भी स्पॉन्सर लाके कराओ, उसमें पूरे इंडियन प्लेयर रहना चाहिए, उसमें फॉरेन प्लेयर को जगह नहीं है। वो इंडियन प्लेयर को लेके तुम खेलो, थोड़ा दिन बाद तुम्हारी इंडिया टीम बाहर की टीम को भी बीट करेगी, ये मेरा गारंटी है। तुम फॉलो करके देखो, अगर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ओके। शॉर्टेस्ट वे में, इससे फास्ट आप काम ही नहीं कर सकते। आप उन लोग को ग्रूम करने का तरीका, आप उनको ISL में जब खिलाओगे तो सब फॉरेन प्लेयर भी तुम्हारे अगेंस्ट में खेलेंगे। और मैं नहीं बोल रहा अंडर एज खिलाओ या ये प्लेयर खिलाओ, आप ग्रूम प्लेयर खिलाओ। जो आप इंडिया टीम में खिलाते हो वो प्लेयर को पूरे के पूरे स्क्वाड को इधर ला दो, और उसका एक टीम बना के, एक स्पॉन्सर करा के उसको ISL में डाल दो। आप इंडिया टीम का फर्क देख लो, अगर गलत हो और अच्छे प्लेयर मिलेंगे आपको, आप उसमें ऐड करते जाओ। आपको उससे अच्छा तो कोई हमारे हिसाब से सॉल्यूशन नहीं है। राइट। सो अभी जब टेक्निकलिटी बात करते हो, फिजिकलिटी बात करते हो, मेंटालिटी, कल वो है या नहीं है टू परफॉर्म? देखो, प्लेयर का बेसिक बहुत स्ट्रांग होना। हाँ। वंस यू स्टार्टेड इन ग्रास रूट लेवल, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप टॉप लेवल पे फुटबॉल में जा नहीं सकते। राइट। तो आप प्लेयर को देख लो, कितने प्लेयर बॉल मारते हैं और कितना गोल में जाता है। सिंपल रीजन बताओ, आप कितने क्रॉस करते हो और क्रॉसिंग में कितना करेक्ट बॉल देते हैं, आप कितना बॉल थर्ड मैन खेलते हो, आपके टीम को काउंटर अटैक आता है कि नहीं आता है, कि आपका टीम पीछे आके जा सकता कि। और इसके लिए अगर पीछे आके जा सकता है तो आपके टीम को डबल स्टैमिना चाहिए, 90 को डबल कर दो, ठीक है। वो स्टैमिना आप डेवलप करोगे तभी टीम जाके परफॉर्म करेगी। आप ऐसे ही खाली बोलोगे सब प्लेयर को लेके खिला दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काउंटर अटैक करने के लिए एक प्लान करना पड़ता है कि कितने नंबर जाएंगे, वो जाके अटैक करेंगे। कम से कम 6-7 से प्लेयर कम जाएंगे गोल एरिया में, कम से कम 5 ही अच्छे तो गोल मार सकते। आप 1-2 बीच में रखोगे, कहाँ से गोल होगा, नहीं हो सकता वो। इसलिए आपको प्लानिंग, आपके टीम का फिटनेस लेवल है बहुत हाई करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप बेसिक जो है, आप जो सिखा रहे, जो ग्रास रूट लेवल में, सॉरी टू से कोचेस जो है, उसको पहले उसको फुटबॉल खेल के ही आना पड़ेगा। प्लेइंग एक्सपीरियंस मैटर करता है। कुछ तो खेला होना चाहिए। प्लेइंग एक्सपीरियंस मैं नहीं बोल रहा कि वो इंडिया खेला, वो कम से कम एक एलीट ग्रुप या कुछ तो भी एक खेला होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको बहुत मुश्किल जाएगा हैंडलिंग। ये तो प्लेयर को ही हैंडल नहीं कर सकते ये लोग बोलते प्लेयर से हमको बहुत वो लगता है, सर आप कैसे हैंडल करते। मैं बोला दूसरा भाषा भी है, हम सेकंड वाला लैंग्वेज यूज करते। What are your thoughts on Indian team, the current Indian football team? इंडियन टीम में एक अच्छा हुआ कि कल्याण चौबे आया अभी, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका वो है कि वो स्पोर्ट्समैन है। इसके पहले कोई स्पोर्ट्समैन प्रेसिडेंट बना ऐसे तो मैंने जिंदगी में देखा नहीं। और उसको फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, वो भी फुटबॉल में पागल है, क्योंकि वो बड़ा ही गोलकीपर था। ये प्लेड फॉर TFA, फिर वो महिंद्रा में आके खेला, JCT में खेला, मोहन बगान में खेला, मुंबई FC में खेला। तो उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है कि फुटबॉल को बढ़ाने के लिए अगर अपन कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन को बनाएंगे तो फुटबॉल का वो चीज फुलफिल नहीं होगा। ये खाली आप इंडिया टीम में बनाएंगे तो नहीं होगा, आपको सब स्टेट में ऐसा आदमी बनाना पड़ेगा जो फुटबॉल से रिलेटेड है और फुटबॉल खेला हुआ है, वो तुमको जरूर फायदा देगा। मैं नहीं बोल रहा सब फायदा देगा, क्योंकि फुटबॉल में भी पहचान तो बहुत चलती है, तो जो पहचान को तो किधर भी बंद करना पड़ेगा कि आपका पहचान का है तो ले लेंगे, आपका पहचान का नहीं, अच्छा भी प्लेयर है तो नहीं लेंगे। इसमें क्या हो जाता है, आपका जो ग्रास रूट लेवल है ये इधर ही गिर गया।
तो आप इसको अगर तैयार नहीं करेंगे पहले से और सीधा सीधा बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग भी नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। हम लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले से जिंदगी भर जैसा है वैसे ही बोलते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल टीम, आपको क्या लगता है इंडिया कब फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल पाएगा? इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए जैसे मैंने बोला था कि इंडिया का एक टीम ऐसा बनाना पड़ेगा जो ISL में खेले। मैं आई लीग का बात नहीं कर रहा, आई लीग में भी एक टीम खेले और ISL में डेफिनेटली खेले। वो टीम को बाहर से स्पॉन्सर हो और पूरे इंडियन प्लेयर से खेले। अब मैं 5 साल का टाइम देता हूँ, 5 साल के बाद इंडिया का टीम वो वर्ल्ड कप के आजू बाजू किधर भी एशिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं वर्ल्ड कप नहीं बोला, एशिया में किधर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। आप वो सब प्लेयर को ISL में डालो और वही टीम खिलाओ आप फॉरेन प्लेयर के अगेंस्ट में जो आप ISL में कंपटीशन कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि नीता अंबानी को भी रिक्वेस्ट करके ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अब जो इंडिया का कोच है, जो भी जिसको रखना चाहते हैं तो उसको उधर रखो, वो कोच और अच्छा परफॉर्म करेगा। नई रिजल्ट है तो उसको चेंज कर देना, दूसरा कोच डालना। तो आपको जो कंपटीशन आप खेल रहे हैं सब फॉरेन प्लेयर के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, आपका रिजल्ट जब हो जाएगा तो आप डेफिनेटली आपका टीम वर्ल्ड कप खेलेगा। और यही एक ऑप्शन है उनके पास, और कुछ ऑप्शन नहीं है। प्लेयर ग्रो करके खेलने का वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जैसे बोला नीचे से ही गड़बड़ है तो ऊपर क्या करेंगे। राइट। एंड ये जो प्रोजेक्ट 2047 है, आपको क्या लगता है वो सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं हो सकता? देखो उसमें कल्याण चौबे ने एक प्लान आउट किया है। राइट। अभी वो प्लान आउट में उसने ग्रास रूट लेवल और इसमें बहुत जोर दिया है, पर यानी बाहर से भी प्लेयर लाने पे जोर दिया कि जो इंडियन ओरिजिन के प्लेयर है। पर मैं बोला वो भी नहीं करते, खाली आप ये छोटा सा ट्रिक करो, आपका पूरा सब चीज चेंज हो जाएगा। और जैसे हुआ कि आप संतोष ट्रॉफी में मैंने जैसे बोला एक प्लेयर गोल मार रहा है, गोल मारने वाले प्लेयर को अलग से ग्रूम करो, तो तुमको कोई स्ट्राइकर ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सब प्लेयर ही स्ट्राइकर, वो जिधर से खेलता है उधर से स्ट्राइकर है ना। वो प्लेयर के अंदर क्वालिटी डेवलप करो, उसको ग्रूम करो। और कोचेस को भी ये समझाओ, जो कोचेस पढ़े लिखे, आप उसमें प्रोविजन रखना पड़ता है। आप A लाइसेंस प्रो लाइसेंस कोच है, अभी B लाइसेंस कोच। अब बताओ इन लोग ने कितना प्लेयर पहले प्रोड्यूस किया। ये क्या प्लेयर प्रोड्यूस करते जो टॉप लेवल में आता? कम से कम मिनिमम स्टेट लेवल में इंडिया प्लेयर में आपका कितना प्लेयर है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप उनको क्राइटेरिया कम से कम तुमको 3 प्लेयर 4 प्लेयर इंडिया में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये प्रो लाइसेंस ये लाइसेंस देगा। आप उसके ऊपर वो नहीं रखे, अब वो लोग कुछ काम ही नहीं करेंगे, सोचते किधर भी टीम जीत जाए तो उतना भी, और टीम जीत जाएगी तो कोच का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है ये मेन नहीं रहता। टीम जीतने के पीछे उसके पास कौन सा प्लेयर है ये भी है, उसके पास अच्छा प्लेयर है तो आप एक अनाड़ी को भी दे दिए तो टीम जीतेगा, है ना। तो आपको प्लेयर को तैयार करके फिर खिलाने में एक अलग चीज है। और आपको प्लेयर अगर कोच प्लेयर ग्रूम करता है तो वो रियल कोच है ना। और नहीं तो कोचिंग करना इतना इजी नहीं है। आप बना बनाया प्लेयर लेके तो आपको भी खड़ा कर दूंगा, अच्छा लाइनअप देखेंगे अच्छे से कौन सा प्लेयर है अच्छा है, मैं इसको डाल देती हूँ, मैं जीत गया तो आप बड़ा कोच हो। इट्स नॉट द फैक्ट। आप उनको वो रखो कि इनको प्लेयर तुमको तैयार करना है, कम से कम ये प्लेयर है इसमें से 5 प्लेयर बोलना चाहिए कि वो आपका प्लेयर है कर। आप ये क्लॉज रखो कोच के ऊपर, प्रेशर रखो। वो खाली ऐसा प्रैक्टिस करके चले गया घर चले गया ऐसा नहीं होना। वो दिन भर फुटबॉल सोचना चाहिए कि वो प्रोफेशनल है, वो एमेच्योर नहीं है या सेमी प्रोफेशनल नहीं है। जैसे इन लोग ने बहुत सारा टीम बंद कर दिया जो गवर्नमेंट का था, जैसे इंडिया, जैसे ONGC, जैसे बैंक्स, जैसे रेलवेज, इन लोग ने कम से कम 50 टीम बंद कर दिया जो प्लेयर लोग को नौकरी देता था, जो प्लेयर लोग को लाइफ में स्टेट खेलो या इंडिया खेलो नौकरी, वो सब बंद हो गया क्योंकि आई लीग में इन लोग ने बोला कि हम प्रोफेशनल बनाएंगे। बट अगर तुम पहले खुद तो प्रोफेशनल बनो, है ना। तुम खुद सेमी प्रोफेशनल नहीं है और तुम ये सब कंपनी वाला टीम बंद कर देगा, कितना लोग का कितना लॉस हुआ।
कितना टीम अभी इन लोग वापस कर ले, जो भी लोग बोल रहे हैं हम लोग इसको वापस रिस्टार्ट करेगा। हाँ। अभी हम हमारे समय में भी हमने इतना रिक्रूटमेंट करा है एयर इंडिया पे, प्लेयर बनाने से ज़्यादा हमने रिक्रूटमेंट करा थी। अब प्लेयर को अगर सेफ्टी नहीं है तो आप कैसे करो? आप सही। प्लेयर कर, कितना बैंक कितना रेलवे आप सोचो सब बंद कर दिया था, अभी वापस स्टार्ट किया। तो इसको अगर आप बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा? आप इसको बंद मत करो, आप खाली एक ही चीज पे ISL पे टीम ट्राई करो, वो मैजिक फॉर्मूला है, आप ट्राई करो, अगर नहीं हो तो हमारा नाम हमको फुटबॉल से निकाल देना। फुटबॉल में बहुत कॉमनली ओवर एज प्लेयर्स को खिलाया जाता है अंडर सर्टेन कैटेगरीज। सो दिस इज समथिंग, ये मतलब मुझे थोड़ा लगता है प्रॉब्लमेटिक है। डिजर्विंग प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता है और फिर वो एज में दूसरी टीम को भी अनफेयर है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, एज तो फैक्टर है। उस एज अगर बढ़ा के खिला तो हमारा एक बड़ा केस हो गया एक कोच के साथ, जो अंडर 19 का टीम लेके गया और हमको बोला कि इसमें से निर्मल छेत्री को रिलीज करो, और मैं बोला उसका एज देखो, वो तो मेरे हिसाब से, मेरे पास तो रिकॉर्ड रहता है, तो एयर इंडिया में था, तो मैंने बोला कि नहीं है वो, बोले नहीं आप रिलीज करो ना। मैं बोला नहीं, मैं रिलीज नहीं करूँगा, और रिलीज करूँगा तो लिखूंगा कि ये और एक प्लेयर है, तो आपको फिर संभालना है। बोला यू आर नॉट सपोर्टिंग कंट्री, ऐसा मेरे को बोला। मैं बोला आई एम सपोर्टिंग फुटबॉल, आई एम फॉर फुटबॉल फर्स्ट। उधर से ही चीटिंग स्टार्ट होगा कि एक अच्छा डिजर्विंग प्लेयर जो करेक्ट एज में है उसको तुम डिप्राइव कर रहे, और तुम ऐसे प्लेयर को जो एस्टेब्लिश है उसको लेके मैच जीतना चाहते, आप आगे जाके क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। ईरान का अंडर 19 टीम आया था, एयर इंडिया टीम को भी नहीं जीत सका, ऊपरी हम लोग जर्मन जैसा टीम को हरा देते। तो ये टीम स्पिरिट में बनाना पड़ेगा, एज को तो आपको देखना पड़ेगा, और ये जो पहचान वाला जो चीज़ है इसको आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आदमी लोग हैं इन लोग स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये लोग है टाइम पास करते हैं, फुटबॉल में आके चाय भजिया खाते और टीम चलाते। हमारे इधर भी नागपुर में हमने NFC जैसा टीम बनाया था, जिसने जाके ONGC को भी हराया, एयर इंडिया को भी हराया, एक पैसा नहीं देते थे कोई प्लेयर को, पर टीम स्पिरिट ऐसा थी कि खेलती थी, जीतती थी। पुणे FC को हराया, बड़े बड़े क्लब को हराया। तो आपको प्लेयर के अंदर वो जुनून, वो पागलपन पैदा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप पार्ट टाइम है, आप अगर प्रोफेशनल है तो आपको पूरा टाइम फुटबॉल ही सोचना है। आप ऐसा करके हमारा घर भी चलाना है, हमको खाना लाने भी जाना है, हमको सब करना है, तो नहीं होगा। तो जैसा 2047 का उसका एम है, वो सक्सेस हो सकता है, बट ISL के जैसा टीम में इंडिया पूरा टीम घुसा दो, आप 5 साल में आप रिजल्ट देख लो। तो बहुत कल्याण चौक पे बहुत डैशिंग भी है और वो कर सकता है, और प्लेयर भी था, है ना, तो वो जरूर कर सकता है। अगर वो सुनेगा तो उसको आइडिया होगा, पर मैंने ऑलरेडी पर्सनली बोला नहीं। राइट। तो पहले हमारे पास ऑब्वियसली आई लीग टीम थी यहाँ से, बट अब फिलहाल नहीं है। अब मुंबई फुटबॉल जब हम आए तो उस समय और के टाटा, मफतलाल, सेंचुरी, ये 4 टॉप का टीम था। वो बॉम्बे में रूल करता था लीग में। उसके बाद हुआ एयर इंडिया, महिंद्रा, ONGC, मुंबई FC, ये 4 टीम आई लीग में था जो। उसके बाद अभी एक भी टीम नहीं है। आपको अगर आपका टीम थी, बच्चे लोग का क्या चांस है? कोई चांस नहीं है टू प्ले, उनको दे हैव टू प्ले आउटसाइड ओनली। आज वो 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन खेलने के लिए पागल हो रहे, क्योंकि उनके पास स्टेट में कोई टीम नहीं है जो रिप्रेजेंट करे। तो आई लीग में अगर आपका टीम ही नहीं है तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? एम नहीं है फिर बच्चों के तो पास। दूसरी जगह ही जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे भी वही हो जाएगा, कंपटीशन है, वो तो होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ में ऐसा है कि बॉम्बे को फुटबॉल को और अपलिफ्ट करने के लिए उनको आई लीग में टीम लाना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ISL तो है, बट ऑब्वियसली मुंबई के 2 या 3 प्लेयर्स ही खेल रहे मुंबई सिटी FC में। मुंबई सिटी FC ISL का टीम जरूर है, बट कितना मुंबई का है नहीं बोल सकता मैं। हाँ, उनका टीम वन ऑफ द बेस्ट है डेफिनेटली। इंडिया का, पर कितना बॉम्बे का टीम है ये वर्ड में यूज नहीं कर सकता। The level has gone down lately. लेवल हैज गॉन डाउन बिकॉज दिस 5-a-side and 7-a-side स्टार्टेड, और ये पूरा इंडिया में फुटबॉल खत्म कर दिया, जैसे कलकत्ता फुटबॉल, जैसा केरला फुटबॉल, जैसा बॉम्बे फुटबॉल, और जैसे गोवा में भी फुटबॉल कंपैरेटिवली इट बिकम डाउन।
क्योंकि पहले उधर सरगावकर, डैम्को, चर्चिल ब्रदर, सब बड़ा बड़ा टीम था, वास्को। तो अभी उधर कोई टीम ही नहीं है, अभी फर्स्ट डिवीजन में उनका भी कोई टीम नहीं है। उनका एफसी गोवा है, वो भी सेपरेट है, ऐसा सोचो, है ना। तो अपने को अगर आई लीग अपन बच्चे लोग को चांस नहीं दे रहे तो फिर अपन वो कहाँ जाएंगे। तो आपको चांस तो बनाना ही पड़ेगा। ऑल्सो मुंबई फुटबॉल एंड कोलकाता फुटबॉल बहुत डिफरेंस है, क्योंकि कोलकाता में इतना क्रेज है, यहाँ है बट वो इतना दिखता नहीं है। कोलकाता फुटबॉल में मैं 15 दिन जाके आया और मेरे को एग्जैक्ट पिक्चर मालूम है कोलकाता फुटबॉल का। बच्चे लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट है खेप खेलने का, खेप बोलते हैं लोग, 5 साइड 7 साइड। वो जाके ना उसमें खेलते हैं, उनको इंस्टेंट पैसा मिलता है कि आज मैच खेला तूने, 5 मैच खेला, तेरे को 7-8 हजार मिल गया, 10 हजार मिल गया। छोटा छोटा प्लेयर, छोटा छोटा प्लेयर को, बड़ा प्लेयर को तो लाखों रुपए ले लेते हो फॉरेन प्लेयर। तो वहां पे क्या है, उनको लीग खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि और टीम के भी बारे में जैसे बोलूं, जैसा मैं टॉलीगंज में 15 दिन था, तो वो टीम ने पैसा ही नहीं थी, उसने मेरे को भी पैसा नहीं थी। तो मैंने बोला आप लोग तो पैसा नहीं देते, बाद में पता चला टीम को ही पैसा नहीं देते। तो मैंने बोला अगर प्लेयर को पैसा नहीं देंगे तो कैसा चलेगा इन लोग। तो मैंने क्या किया, प्लेयर लोग का मीटिंग बुलाया, वो 15 डेज में, और 15 डेज में बुलाया और उनको पूछा कि, तो बोले हमको इन लोग पैसा ही नहीं देते, और हम लोग कैसे ट्रेवलिंग करेंगे सर, कैसे। तो हम लोग जाके केप खेलते और वहाँ से हम लोग पैसा कमाते और फिर आके मैच खेलते। बोला अगर उधर केप खेलोगे तो तुम्हारे को इंजरी भी हो जाएगा, तो तुम तो दूसरे दिन प्रैक्टिस में नहीं आ सकते। हाँ। तो वो बोले सर पैसा ही नहीं देते। मैंने फिर डिसाइड किया, फिर एक मैच था टॉलीगंज और मोहम्मदन का, तो वो मेरा लास्ट मैच था उधर का 15 डेज का। तो मैंने बोला, और मोहम्मदन तभी टॉप में चल रही थी, तो मैंने थोड़ा सिस्टम चेंज किया, उनको 4-5 दिन अलग सिस्टम से खिलाया। और उन लोग ने एक टीम बनाया, उनका मैनेजमेंट टीम बना रहा, सोचो पैसा तो दे रहा ही नहीं, और हम थोड़ा लेट पहुंचे। जब उसने वो मैनेजर ने ला के दिया हमारे पास, मैंने वो फाड़ के फेंक दिए डस्टबिन में। मैं बोला जब जो टीम बनाऊंगा ना मैं, वही खेलेगी, जब तक मैं रहूंगा इधर तो वही खेले। मोहम्मदन बहुत अच्छा टीम था, हम लोग 1-0 से डाउन थे, 2-1 से हम लोग जीते, बहुत ताली वाली मारा। दूसरे दिन मैंने फ्लाइट पकड़ा और सीधा नागपुर की तरफ चले गए, क्योंकि मैं बोला उधर काम करना अपना सही नहीं है ना। अगर तुमने प्लेयर को ही पैसा नहीं थी, कोच को नहीं दिए, चलो हमको समझता है, चलो हम तो कैसे भी प्लेयर संभाल लेंगे, प्लेयर को खाने का पैसा नहीं है, इसका पैसा नहीं है, कैसे चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, ऑल ओवर इंडिया चलता है ये, केरला में भी बहुत है उनका स्टैंडर्ड, इसलिए गोवा में बहुत है, गोवा भी अभी डाउन हो गया। तो सब जगह ऊपर अपनी पर, जैसे क्रिकेट में थोड़ा है कि क्रांति जैसा है, फुटबॉल में वो क्रांति नहीं है, हॉकी में तो कुछ ही नहीं है, हॉकी का तो नाम ही नहीं है, यानी क्रिकेट के बाद अगर कोई गेम है तो फुटबॉल है। और तो अभी डेवलप भी हो रहा है, बिकॉज़ आईएसएल के से थोड़ा सा टीम आईएसएल से थोड़ा डेवलप है, पर उसमें भी एजेंट का सिस्टम है। एजेंट ही ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रहते, वो प्लेयर लोग को, सही प्लेयर लोग को अगर और अच्छा ग्रोथ मिलेगा, इट विल हेल्प फुटबॉल। राइट सर, जब हम इंजरीज की बात करते हैं, तो जब प्लेयर्स या एज अ प्लेयर व्हेन यू वर इंजर्ड, हाउ डिड यू गेट थ्रू द फेज? मतलब वो मेंटली तो बहुत ऑब्वियसली आपको अफेक्ट कर लेता है, आप एकदम लो फील करने लगते हैं, तो मेंटली आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ऐसी चीज़ की? उस समय प्लेयर को बहुत एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। हम लोग जाके जिम ज्वाइन करते हैं, हम लोग जाके फिजियोथेरेपिस्ट उन लोग के पास जाते हैं, फिर हम लोग जाके स्विमिंग करते हैं। तो डिफरेंट चीज हम लोग करके अपने आप को शेप में लाने का कोशिश करते हैं कि इंजरी को ठीक करो। अगर तब भी नहीं होगा तो ऑपरेशन होना पड़ेगा। अब ये ऑपरेशन होगा तो रिहेबिलिटेशन चाहिए, रिहेबिलिटेशन के बिना पर आपका वो लेवल नहीं आएगा आपका, जब नी इंजरी हो जाएगी आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू कम अप। तो ये सब प्लेयर्स का भी लाइफ बहुत सिक्योर्ड है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। बट इसको डील कैसे करेंगे इंजरी के साथ? पहले आपका जो प्रैक्टिस है और आपका जो ग्राउंड है फिर वापस वही पोजीशन में आ जाएगा। आपको ये जो टफ है, आर्टिफिशियल टफ, ये सबको बंद करके आपको ग्रास रूट लेवल में लाना, ग्रास में लाना पड़ेगा, नेचुरल ग्रास। हाँ, नॉट मड ग्राउंड, ग्रास ग्राउंड लाना पड़ेगा। वो फुटबॉल को आपको, नहीं तो ये जो टफ है ये फुटबॉल को
या अदर गेम को भी तकलीफ कर देगा। एंकल इंजरी या नी इंजरी मस्ट है, होगा ही होगा। अगर आपको कुछ एडवाइस देना हो तो दी एस्पायरिंग एथलीट या जो अभी फुटबॉल मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं या जो खेल रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही डिसिप्लिन पहले मस्ट है, उसके साथ तुम्हारा पागलपन होना चाहिए, मैडनेस होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, और तुम्हारा कोच के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, और तुम खुद के लिए पहले खेल रहे ये सोचो। नॉट प्लेइंग, जो भी फुटबॉल खेलता है वो इंडिया खेले, वर्ल्ड कप खेले, वो खुद के लिए खेलता है। उसके बाद जो टर्म आता है तुम्हारा, तुम कोचिंग का, वो तुम्हारा ऐसा होता है कि तुम दूसरे के लिए कर रहे हो, और दूसरे के लिए कर रहे, तुम भी पैसा कमा रहे, मैं नहीं बोल रहा पैसा नहीं कमा रहे, बट पैसा कमाने के साथ भी आप देखते कि दूसरा लोग कैसे डेवलप होता, और वो फुटबॉल में बहुत सही काम कि आप प्लेयर को डेवलप करने में आप, अच्छा इसका भी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेगा, उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, ये प्लेयर को तैयार करेगा, ये प्लेयर। जब आप खेलते तो आप खुद के लिए सोचते कैसे मैं गोल मारूंगा या कैसे मैं गोल बचाऊंगा, इतना तक ही है फुटबॉल में। और सब जो है ना वाइट वॉश है ना। तो फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें गोल मारना और बचाना ही मेन चीज। आप बाकी कितना भी बॉल रखो, कुछ करो, उसका कोई इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। So this is the end of the episode today. We have Mr. Bimal sir giving us a little advice to you guys. आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना इसको पब्लिश करेंगे फुटबॉल का फायदा होगा। Thank you very much. You heard him, guys. Please go ahead, like, subscribe and share this video right now.